Thank you very much. Assalamu alaikum. Today our class is regarding multiple dosing regime, and in the multiple dosing regime we have already taken the different concepts of the multiple dosing regime of IV injections, and in this class we will move towards the multiple dosing regime of the oral tablets. Multiple dosing regime of oral tablets. Okay, oral tablet multiple dosing regime is a situation in which we provide the drugs or the dosage form to those type of patients who are in the chronic conditions and those type of the diseases which we want to treat in by using the multiple dosings. We will understand the basic concepts of the pharmacokinetics which we are using in the calculations and also the different parameters. I will write the whole scenario with the comparison of IV injections with the oral or the other than IV. These are all the calculations for those type of the drugs who are following one compartment model. We will have to write first. There are the four assumptions. Drug is following one compartment model. First order rate kinetics, there is no metabolism, and only clearance is through renal clearance. All these equations which we learn in this chapter are considered to be correct when we will only assuming these four parameters. We are discussing the drug which is only present in the plasma circulation, not absorbing from the plasma to the other, and the other is first order rate kinetics. Drug is following first order means concentration dependency, no metabolism. If we discuss the metabolism, then we will have to make some changes in the formula. And other is the only clearance is only renal clearance. And by considering all these, we will have to make the same assumptions as we have already discussed in the IV injections. Okay, हम इसको जब write करेंगे IV injections के form में, then oral tablets या other than IV injections, oral tablets other than IV injections. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हम इसमें लर्न करने जा रहे हैं. हम पहले क्या लर्न कर चुके हैं और अब आगे हमने क्या लर्न करना है. इस वाले में हमने सबसे पहले जो लर्न किया था वो था प्लाज्मा कंसंट्रेशन CP. फिर हमने लर्न किया था CP मैक्सिमम, फिर हमने लर्न किया था CP मिनिमम, देन CP SS, देन CP SS मैक्सिमम, देन CP SS मिनिमम, देन CP SS एवरेज, देन लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, ड्रग अकामुलेशन एंड फ्लक्चुएशन. और इसी में हमने फिर ये भी देखा था कि किस तरह से हम डोजेस को कैसे कंट्रोल करते हैं. तो डोज को और डोजेज फॉर्म को भी चेक करने के लिए हमने इसको कुछ 9 स्टेप्स की हमने बात की थी. इस वाले केस में भी हम बिल्कुल सेम पैरामीटर्स हम इसमें जो फाइंड करेंगे वो CP SS, CP मैक्सिमम, CP मिनिमम, CP SS maximum, CPSS minimum, CPSS average, loading dose,
maintenance dose, accumulation and fluctuation. ऑलमोस्ट हम सेम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसको हमें समझने के लिए हमें इसकी थोड़ी सी बेसिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने आईवी इंजेक्शंस की बात की थी और मल्टीपल डोज की बात की थी, तो हमने इसके इनिशियल फार्मूला से इसको हम लेके आए थे, जहाँ पर हमने बोला था कि जो इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है या प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे अगर फाइंड करना है तो उसके लिए सिंपली आप इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ई माइनस के टी से। यानी इसमें आपने जो, मैं इसको 3 डिफरेंट सिनेरियो में राइट करूँगा ताकि हमें इस सारे मामले को क्लियरली हमें समझ आए कि हम इसमें क्या डिफरेंस कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही 4 क्लासेस बना लें। एक में हमारे पास है आईवी इंजेक्शन सिंगल डोज, बोलस डोज, आईवी इंजेक्शन मल्टीपल डोज, oral tablet single or bolus dose, oral tablet मल्टीपल डोज। हम इसको कंपैरिजन में पढ़ते हैं, फिर हमारे लिए इंतहाई ये सिंपल हमें फील होगा। जब हम बात करते हैं आईवी इंजेक्शन की और हमने फाइंड जो करना है वो है हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन CP। CP इज इक्वल टू CP नॉट E माइनस KT। इसी को एक और फॉर्म में भी राइट करते आए हैं, X नॉट ओवर VD E माइनस KT। डोज ऑफ द ड्रग डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, टाइम जिस पे आप कंसंट्रेशन को मेजर करना चाह रहे हैं। CP नॉट इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, टाइम, ये सारा फैक्टर हम फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पर हमने काइनेटिक्स की बेसिक्स को स्टार्ट किया था वहाँ हमने ये बात सीखी थी। जब हम मल्टीपल डोजिंग में आए, यहाँ हमने कहा कि यहाँ आपको एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है जिसको आपने बोला था डोज रेशो, CP नॉट इंटू R E माइनस KT। ओके, X नॉट ओवर VD इंटू R E माइनस KT। मल्टीपल डोजिंग, IV इंजेक्शन, जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डोज इंटरवल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डोज रेशो। अभी R क्या है? R को हमने डिफाइन किया था कि डोज रेशो है और ये बन जाएगा X नॉट ओवर VD 1 माइनस N K टा ओवर 1 माइनस K टा E माइनस KT CP प्लाज्मा कंसंट्रेशन बाय एडिंग द डोज रेशो। और अगर मैं इसे ऊपर वाले में राइट कर दूं डोज रेशो को, तो ये बन जाएगा CP नॉट 1 माइनस N K टा ओवर 1 माइनस K टा E माइनस KT। ये सब फार्मूलाज प्लाज्मा कंसंट्रेशन के हैं। कब? जब आप एक सिंगल इंजेक्शन ले रहे हैं। कब? जब आपने उसे मल्टीपल इंजेक्शंस दिए हैं। अब जब मल्टीपल इंजेक्शंस दिए हैं, इस इक्वेशन को और भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जो कन्वीनियंस के लिए। इस K को आप 0.693 ओवर T हाफ राइट कर सकते हैं, तब ये फार्मूला और एलेबोरेट होके आएगा। लेकिन हमें, क्योंकि हमारा जो फोकस है, हमारा जो टॉपिक है वो ऑरल टैबलेट मल्टीपल डोजिंग है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट मूव करते हैं कि आगे इसमें फर्दर क्या ऐड होगा। जब हमने सिंगल टैबलेट की हम बात करते हैं, तो सिंगल टैबलेट में या बोलस जो डोज में हमारे पास जो CP का फार्मूला है वो है F नॉट KA V इंटू KA माइनस K E माइनस KT E माइनस KAT।
प्लाज्मा कंसंट्रेशन सिंगल टैबलेट के बाद, रिमेंबर सिंगल टैबलेट, सिंगल सस्पेंशन, सिंगल ऑरल सोल्यूशन डोज, ऑरली अगर कोई चीज़ इंटेक की गई है देन ये फार्मूला ठीक है। या मैंने पहले भी क्लास में जिक्र किया था कि अगर हम ये अज्यूम करें कि ड्रग टॉपिकली अप्लाई हुआ है लेकिन हम उसकी कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं प्लाज्मा से, तब भी ये बात ठीक है। यानी और कंडीशन वही रहेगी इन तमाम फार्मूलाज में कि जो हमारे पास जो ड्रग है वो वन कंपार्ट को फॉलो कर रही है। वन कंपार्ट मीन्स ड्रग ओनली प्रेजेंट है कहाँ पर, ब्लड सर्कुलेशन में या हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ में, ना वो आगे जाके जो अपना इसमें के फर्दर जो है मसल्स में या बोन्स में इसकी पेनिट्रेशन नहीं है। सिंपल जो है वो इसकी पेनिट्रेशन कहाँ है जी, ब्लड सर्कुलेशन में है। तो एफ एक्स नॉट के ए ओवर वी इंटू के माइनस के ई माइनस के टी, यहाँ अगर हम देखें तो कुछ फैक्टर्स बढ़ गए हैं पहले से। एफ बायोअवेलेबिलिटी ऐड हुआ है बिकॉज आईवी इंजेक्शन के केस में हम बायोअवेलेबिलिटी को यहाँ पर हम एफ को स्किप कर देते हैं, वरना इसका फार्मूला यहाँ पर भी एफ एक्स नॉट ओवर वी डी है इंटू ई माइनस के टी था, यहाँ पर एफ एक्स नॉट ओवर वी डी माइनस के टी था। लेकिन हमने यहाँ एफ राइट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम आईवी इंजेक्शन के केस में अज्यूम करते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 1 है या 100% है, तो इसलिए हम इसमें एफ फार्मूला में ही राइट नहीं करते। से जब हम ऑरल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें बायोअवेलेबिलिटी को मेंशन करना होगा, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए अमूमन बायोअवेलेबिलिटी 1 राइट करके इसको कैलकुलेशंस को अपने खासकर हॉस्पिटल सेटिंग में और जहाँ पर हमें डायरेक्ट जो है पेशेंट से रिलेटेड कैलकुलेशंस होंगी वहाँ पर हम एफ को 1 लेके, ये 100% बायोअवेलेबिलिटी लेके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इस फार्मूला को और थोड़ा सा अच्छा कर लें, यही सी पी जो है वो इक्वल है, ये आपको याद होगा एक्स नॉट ओवर वी इज इक्वल टू सी पी नॉट, एफ सी पी नॉट के ए ओवर के ए माइनस के ई माइनस के टी ई माइनस के ए टी। मैं इस पूरे टेबल में एक ही चीज़ के 2 फार्मूला राइट कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि जो पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे हम उन्हीं पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए इन कैलकुलेशंस को कर सकेंगे। यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक्स नॉट ओवर वी इज इक्वल टू सी पी नॉट, एक्स नॉट ओवर वी इज इक्वल टू सी पी नॉट, एक्स नॉट ओवर वी इज इक्वल टू सी पी नॉट, देन एक्स नॉट ओवर वी इज इक्वल टू सी पी नॉट। मैंने उसी को रिप्लेस किया और यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐड हुए, बायोअवेलेबिलिटी एफ, एक्स नॉट डोज, के ए एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, वी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस 2 रेट्स का के ए माइनस के का एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट का और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का डिफरेंस, और देन के टी और के ए टी, और ये जो के है और के ए है, ये देखिए अगर आप थोड़ा और करें तो इन तमाम में जो चीज़ कॉमन है वो रेट कांस्टेंट है। बेसिकली हम एक उस रेट की तरफ बढ़ रहे हैं, उस कंसंट्रेशन को हम मेजर करना चाह रहे हैं कि किस रेट से ड्रग पेनिट्रेट किया है, किस रेट से ड्रग जो है मूव कर रही है, सर्कुलेट हो रही है। अब उस रेट में आपके पास 2 तरह के रेट अभी तक डिस्कस हुए, एक एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आईवी इंजेक्शन के केस में हम एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट अज्यूम करते हैं कि एब्जॉर्प्शन नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेशन स्टार्ट होगा से के एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। इस वाले सारे सेगमेंट में आपको के ए नज़र नहीं आएगा, जबकि इस वाले सेगमेंट में के ए प्रेजेंट है। उसकी रीज़न बहुत सिंपल कि यहाँ पर ऑरल या अदर देन आईवी की हम बात कर रहे हैं, और ऑरल या अदर देन आईवी के केस में ड्रग को पेनिट्रेट करने में या ड्रग को एब्जॉर्ब करने में उस एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की बात होगी जिसको हम के ए से राइट कर रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम गौर करें तो हमने उसको एक्सपेंड किया है। सेम केस में अब आते हैं मल्टीपल ऑरल डोजिंग की तरफ, कि अब हमने एक ही उस पेशेंट को कि हमने वो कैलकुलेशन करना चाहते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा ड्रग्स यूज़ हुई हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम, अगर आप इसको थोड़ा सा जेन में लाएं तो यहाँ हमने 2 रेशो से मल्टीप्लाई किया था। मैं इस पूरे फार्मूला को 2 रेशो से मल्टीप्लाई करके लिखूँगा और फिर हम इसके 2 रेशो की वैल्यू राइट कर देंगे। ये सिंपल हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन का फार्मूला बनेगा। इसमें हमारे पास जो फार्मूला हुआ सी पी इज इक्वल टू, मैं इसी को राइट कर रहा हूँ, एफ एक्स नॉट
के ए ओवर वी इंटू के ए माइनस के इंटू आर ई माइनस के टी माइनस आर ई माइनस के ए टी। यहाँ मैंने जो है सिंपल दोस रेशो से मल्टीप्लाई किया है, और दोस रेशो से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने जो मेरे पास आर जो है वो दोस रेशो, और बिल्कुल सेम केस में मैंने यहाँ भी ऐसे ही किया था कि पहले मैंने दोस रेशो को मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ मैं इसको जब इसमें इसे ओपन करूँगा इस वाली फार्मूला को, तो ये फार्मूला मेरे पास बनेगा अब सी पी इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट के ए वी इंटू के ए माइनस के 1 माइनस एन के टा ओवर 1 माइनस के टा ई माइनस के टी माइनस 1 माइनस एन के ए टा ओवर 1 माइनस के ए टा ई माइनस के टी। ये सिंपल सा इक्वेशन बन गई। हमने इसमें क्या किया है, सिंपल दोस रेशो की वैल्यू को ऐड किया है। अगर हमें बिल्कुल थोड़ा समझ में आ रहा है तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर हम इन फैक्टर्स को देखें तो वही सारी बातें हैं सिवाय दो चेंजेस के। इस वाले फार्मूला में, इस फार्मूला में अगर कहा जाए कि सिमिलरिटीज बताइए, सिमिलरिटीज कौन कौन सी हुई? एग्जैक्ट ये एफ एक्स नॉट वी के ए ओवर वी इंटू के ए माइनस के, ये एग्जैक्ट सिमिलर है। रिमेंबर, ये एग्जैक्ट सिमिलर कैलकुलेट करने के लिए अगर आप ग्राफ बना लेते हैं, और अगर आपने फॉर एग्जांपल सिंगल का यूं ग्राफ बनाया है, इसे आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एफ एक्स नॉट के ए ओवर वी इंटू के ए माइनस के ए है, सी पी नॉट है, वाई इंटरसेप्ट है। तो पहला क्या हुआ, दोनों का सेम है, एफ एक्स नॉट के ए वी इंटू के, एफ एक्स नॉट के ए वी इंटू के। दूसरे वाला भी सेम है, लेकिन सिंपल मल्टीप्लाई किया आपने इसके अंदर किसको, दोस रेशो को। जब इसे दोस रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब दोस रेशो को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास दो चीज़ें और ऐड हुई हैं इसके अंदर। एक तो नंबर ऑफ डोजेस का कंसेप्ट ऐड होता नजर आ रहा है n, और एक इसमें डोजिंग इंटरवल ऐड होता हुआ नजर आता है टा। ये दो चीज़ें ऐड हुई हैं, बाकी फार्मूला वही है। यानी अगर हमें मल्टीपल डोजिंग की बात करना होगी तो हमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा हमें उस ड्रग की पता होना चाहिए, जिनमें डोजिंग इंटरवल कि कितनी देर के बाद उसकी नेक्स्ट डोज दे रहे हैं, और दूसरा हमें कितनी डोजेज हम दे चुके हैं, n क्या है। तो n और डोजिंग इंटरवल, ये दोनों चीज़ें ऐड होके आई। इस फॉर्मूला को इस फॉर्मेट में लिख के देखते हैं। ये है जी सी पी इज इक्वल टू, मैंने इसको एक्स नॉट और वी को सी पी नॉट कर दूं, एफ सी पी नॉट के ए वी इंटू के ए माइनस के 1 माइनस एन के टा ओवर 1 माइनस के टा ई माइनस के टी माइनस 1 माइनस एन के ए टा ओवर 1 माइनस के ए टा ई माइनस के टी। प्लाज्मा कंसंट्रेशन सिंगल डोज के मल्टीपल डोज के बाद तो क्या रिक्वायर्ड हुआ, सी पी नॉट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, नंबर ऑफ डोजेज, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, डोज इंटरवल, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, डोज इंटरवल, देन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, टाइम जिस पे आप मेजर करना जा रहे हैं, नंबर ऑफ डोजेज, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, देन टा। रिमेंबर, ये सारे वही रिपीट है। यानी आपने एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट जो वंस आपने कैलकुलेट कर लिया, यही आगे यूज होना है। हमने कैसे कैलकुलेट किया, दो मेथड से हम ये बार बार करते आए हैं, एक वैगनर नेल्सन से और दूसरा फीडरिंग टेक्निक से। और डोज इंटरवल जो आपने एडजस्ट किया है टा, उसको भी आपने राइट किया। तो अब इसमें आपको सीपी फाइंड करना, ये तमाम चैप्टर्स में, तमाम प्रोसेस में आपको समझ में आ गया। इसी का अगर एक और इसको अच्छा करते तो हम इसमें आईवी इन्फ्यूजन को भी साथ लेके आ सकते थे कि आईवी इन्फ्यूजन के केस में सीपी क्या होगा, वो इन्फ्यूजन रेट का एक कंसेप्ट है, उसमें आपको इन्फ्यूजन रेट को भी साथ ऐड करना होता है। इन्फ्यूजन रेट को आप के वी से डिवाइड करते हैं और 1 माइनस ई माइनस के टा से जो है आप उसको डिवाइड करते हैं, के टी से मल्टीप्लाई करते हैं,
तब आप उसमें से इन्फ्यूजन में भी कैलकुलेट करेंगे। तो रिमेंबर हमारा जो सब्जेक्ट की जो बेसिक्स हैं वो ये हैं कि हमें प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन को मेजर करना और किस टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है उसे मेजर करना। मैंने इसे पूरे ये ऑलमोस्ट 4 चैप्टर डिफरेंट हैं, उनको हमने कंपैरिजन में देखा है तो काफ़ी सिंपल फील हो रहा है कि पहले वाले केस में एक इंजेक्शन है, फार्मूला बहुत सिंपल, CP इज इक्वल टू CP नॉट E माइनस KT। मल्टीपल इंजेक्शन हुए, डोज रेशो साहब मल्टीप्लाई हो गए, ऑरल की फॉर्म में आए, अब हमें एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट और बायोअवेलेबिलिटी को भी लेके आना है, और ऑरल मल्टीपल में जब जाएंगे तो उसके साथ आपको साथ मल्टीप्लाई करना है किसको जी, डोज रेशो को भी, और उसके साथ आपके पास जो वैल्यू, उन वैल्यूज़ को भी आपने x नॉट KA ओवर V इंटू KA माइनस K, इस वाले फैक्टर को आपने वैसे कांस्टेंट लेके चलना है जी। जी हाँ, ये AT बिल्कुल ऐसे KAT, बिल्कुल नीचे भी KAT है क्योंकि ये इसी पैटर्न पे आ रहा है KAT, और ये उसी पैटर्न पे आप उसको KAT को राइट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो ये हमारे पास था पहला स्टेप, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को फाइंड करना। दूसरा है हमें CP मैक्स को फाइंड करना, CP मैक्स फाइंड करना, यानी जैसे मैंने आपको याद हो कि मैंने जब जैसे इस चैप्टर को शुरू किया मैंने लिखा है जी कि कौन कौन से फैक्टर्स हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं, CP मैक्स, CP मिनिमम और CPSS और देन सो ऑन। हम अगर CP मैक्स की बात करें तो इसमें भी CP मैक्स है, यहाँ भी CP मैक्स है, यहाँ भी CP मैक्स है, मीन्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन CP मैक्स, जिसको आप लोग C मैक्स राइट करते हैं। तो C मैक्स राइट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी अजम्पशन रहेगी, वो ये है कि जब T जो है वो 0 है, टाइम जब आप 0 लेंगे, देखिए IV इंजेक्शन के केस में टाइम 0 जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। आपने जैसे इंजेक्शन इंसर्ट किया है, IV इंजेक्शन दिया है किसी पेशेंट को, तो अब उसमें आपने जो T है वो 0 टाइम पे इंजेक्शन दिया है और 0 टाइम पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस T को 0 राइट कर दूँ तो ये वाला जो फार्मूला है मेरे पास वो क्या हो जाएगा जी, CPS हो जाएगा। यानी इसमें मेरे पास जो T है उसे मैं यहाँ इसको T को 0 राइट करूँगा तो ये बन जाएगा CP, मैं इसको पहले चेंज करता हूँ, CP नॉट E माइनस K इंटू 0। ये सारा मैंने कल भी आप लोगों से क्लास में जिक्र किया था कि अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो वो इक्वल होगा 1 के, और अगर किसी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो वो इक्वल होगा 0 के, और अगर किसी चीज़ की पावर 1 हो तो वो वही वाला फैक्टर है जो लिखा गया, मीन्स x पावर 1 इट मीन्स इट्स x पावर 0 इट मीन्स इट्स 1, x पावर इन्फिनिटी इट मीन्स इट्स 0। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। तो यहाँ हमने क्या रखा जी, K की जगह पर जब हम इसको 0 को राइट करेंगे तो K में हमारे पास जो है ये सारा टर्म 1 हो गई, तो CP मैक्स इज इक्वल टू CP नॉट। सिंपल, अगर सिंगल इंजेक्शन दे रहे हैं तो जो इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है CP नॉट जो है वो मैक्सिमम है, और बिल्कुल हकीकत में है भी ऐसा ही कि जब आप फर्स्ट इंजेक्शन बोलस इंजेक्शन फॉर्म में देंगे तो आपके पास जो इनिशियल टाइम पे जो T नॉट पे जो कंसंट्रेशन है वो CP मैक्स है या C मैक्स है, और वो CP नॉट के इक्वल है जी। ओवरऑल में CP नॉट ओवर V, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको V को कैंसिल किया, थैंक यू जी। तो हमारे पास ये CP मैक्स इज इक्वल टू CP नॉट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इस T को हम क्या करेंगे, यहाँ T को हम 0 राइट करेंगे। जब इसका T को 0 राइट करेंगे फिर ये 1 हो जाएगा, और ये सारा फार्मूला जो है हमारे पास आ जाएगा जी, CP इज इक्वल टू CP नॉट 1 माइनस N केटा ओवर 1 माइनस केटा CP मैक्स, क्योंकि ये वाली सारी टर्म E माइनस KT जो है वो 1 हो गई है। अब इसका CP मैक्स देखते हैं मल्टीपल डोजिंग में या सिंगल डोज अदर देन IV। यहाँ पर हम सिंपल एक चेंज करेंगे, जहाँ पर हम T राइट कर रहे हैं वहाँ पर हम T मैक्स राइट कर देंगे। जहाँ पर हम T राइट कर रहे हैं उसको हम क्या राइट कर देंगे जी, T मैक्स राइट करेंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास ये जो C मैक्स सिंगल डोज के केस में फार्मूला जो बनेगा वो होगा CP मैक्स F CP नॉट ओवर Ka माइनस K
ई माइनस के टी मैक्स माइनस ई माइनस के ए टी मैक्स। मैंने सिंपल इसी फार्मूला को उसी पैटर्न पे राइट कर रहा हूं, और जो टी है उसको मैंने अब टी मैक्स राइट कर दिया। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमें यहाँ पर इस वाले केस में तो हमें इसकी कोई ज़्यादा नीड ना थी, इसलिए नीड नहीं थी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टी जो था वो 0 था और हमने इसको 0 को राइट किया, लिहाजा वो आंसर 1 आया। ई की पावर 0 में तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ अब जब यहाँ बात करेंगे टी मैक्स की, तो यहाँ टी मैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो टी मैक्स का फार्मूला बहुत सिंपल, वो है जी हमारे पास ln के ए ओवर के डिवाइडेड बाय के ए माइनस के। ये कैसे ड्राइव हुआ इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, फिलहाल जस्ट सीखते हैं कि टी मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए टी मैक्स कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, टी मैक्स रेट पे डिपेंड करता है। दो रेट्स पे डिपेंड करता है, किस किस पे? एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट पे और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट पे। और हमें इन दोनों रेट्स को दो तरह से यूज करना है। एक में हमने इन दोनों की रेशो ले लेनी है, के ए को के से डिवाइड करना है और उसका नेचुरल लॉग लेंगे जो नॉमिनेटर में मैंने राइट किया। और दूसरे में इन्हीं दो रेट्स का हमने डिफरेंस लेना है, के ए माइनस के। तो जो रेशो ली है उसका नेचुरल लॉग लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए डिफरेंस से, तो टी मैक्स आपके पास आ जाएगा। अब इस सारे को सॉल्व करके देख लें, टी मैक्स के यूनिट्स आपके ख्याल में क्या होंगे? टी मैक्स के यूनिट्स क्या हैं? वैसे तो टाइम के यूनिट नहीं, ये हकीकतन भी टाइम के ही यूनिट्स में है। जब ये टी है, टी फॉर टाइम, टाइम शुड बी इन आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, डेज। तो टी मैक्स इसका अगर आप इसके यूनिट्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके यूनिट्स जो आपके पास आएंगे, जो आपके पास जो यूनिट है वो आवर्स में आएगा, नॉट पर आवर। के इन पर आवर, रेट कांस्टेंट इन पर आवर, और जो सिंपल आपके पास जो टी है वो उसका आर। तो ln के ओवर के ए माइनस के से आपने टी मैक्स को कैलकुलेट कर लिया। और इस वाले फार्मूला में आपने सिंपल जो पहले वाली इक्वेशन थी उसमें आपने टी की जगह पर वर्ड टी मैक्स राइट किया। यानी अगर हमें कोई कहे कि आपने एक सिंगल टैबलेट पेशेंट को, या खुद आपके जो पीएचडी के वर्क में जो स्टडीज़ हैं उसमें अगर आपने किसी एनिमल को जो है वो एक सिंगल टैबलेट दी और उसके बाद आपने उसके ब्लड सैम्पलिंग लेना शुरू की। अब ब्लड सैंपल लेने में आपके पास टी मैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? पहले आप उसका दो रेट कैलकुलेट करेंगे, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से डिवाइड भी करेंगे और एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को माइनस भी करेंगे। डिवाइड करके उसका नेचुरल लॉग लेंगे और उस आंसर को डिवाइड कर देंगे जो आपने डिफरेंस लिया है। इस डिफरेंस से जो आपके पास जो आंसर होगा वो टी मैक्स, उस टी मैक्स को आप यहाँ राइट करेंगे तो आपके पास ये जो सी पी था, जो स्टार्ट में यहाँ पर सी पी था, यहाँ ऊपर ये सी पी मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाना चाहिए, जो टी है उसको टी मैक्स हो जाना चाहिए मल्टीपल डोजिंग में। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे, यहाँ हम डिफरेंस रखेंगे कि यहाँ पे टी मैक्स को टी बार मैक्स राइट करेंगे। वो क्यों है उसका फार्मूला बताएगा। तो यहाँ अगर मुझे सी पी मैक्स कैलकुलेट करना हो मल्टीपल डोजिंग के केस में, तो सी पी मैक्स इज इक्वल टू एफ सी पी नॉट के ए ओवर के ए माइनस के 1 माइनस एन के टा ओवर 1 माइनस के टा ई माइनस के टी मैक्स बार माइनस 1 माइनस एन के ए टा ओवर 1 माइनस के ए टा ई माइनस के ए टी मैक्स बार। ये हमारे पास जो है वो किसी भी डोज में, चाहे एक इंजेक्शन सी मैक्स एग्जिस्ट करता है, सी पी नॉट के इक्वल है। काफ़ी सारे इंजेक्शन दे दिए, सी पी नॉट इंटू डोज रेशो, याद रखने के लिए आसान, सी पी नॉट इंटू डोज रेशो, डोज रेशो को सी पी नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी मैक्स है। सिंगल डोज के लिए जहाँ पर टी राइट किया था वहाँ पर टी मैक्स राइट कर दीजिए।
मल्टीपल डोज के लिए जहाँ पर टी राइट किया था वहाँ पर टी बार मैक्स राइट कर दीजिए, और फिर उसमें पहले टी मैक्स कैलकुलेट करने की बात हुई है और टी बार मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए भी एक सिंपल सा फार्मूला, उसमें आपके पास जो है वो टी बार मैक्स जो है वो इक्वल है 2.3 और 3 इंटू डिवाइडेड बाई के ए, ये नेचुरल लॉग ओवर के ए, और इसको सिंपल सा अगर आप इसको राइट कर लेंगे तो इस पर हम क्लास को एंड करेंगे कि टी मैक्स बार इज इक्वल टू 2.303, मैं इसको राइट कर देता हूँ एल एन, नेचुरल लॉग ऑफ वन डिवाइडेड बाय के ओवर के, नेचुरल लॉग ऑफ के ए 1 माइनस के टा ओवर के ए 1 माइनस के ए टा, इससे हम टी मैक्स बार कैलकुलेट करेंगे और इस टी मैक्स बार को जो है हम यूज़ करेंगे मल्टीपल डोजिंग में। अब लोगों ने करना ये है कि आपने इन फार्मूलाज को कम से कम जो नेक्स्ट क्लास में जब तशरीफ लाएंगे तो ये जितने मैंने फार्मूलाज लिखे हैं इसका एक एक न्यूमेरिकल आप लोग बना के लाएंगे, हर एक का एक एक कंडीशन बना के लाएंगे। स्टार्ट करेंगे सीपी से, एंड करेंगे सीपी मैक्स की तरफ। तो ये पूरा टेबल जो है आप लोगों को अगर थोड़ा सा ट्रिकी होकर सोचें, बिलीव मी ये इतना मुश्किल नहीं है जी। माइनस के ए टा के